सर बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन जो आजकल सभी लोग सुन रहे हैं कि मिग 21 एज अ विडो मेकर या फ्लाइंग कॉफिन के रूप में। दुनिया के अमेरिकन फाइटर्स उठा के देख लीजिए, उसके जो कंपैरिजन के जो फाइटर्स हैं, उस दौरान के जो फाइटर्स हैं, ना कि मिग 21 विडो मेकर है या फिर फ्लाइंग कॉफिन है, ये मैथमेटिकली गलत है। Sir, first of all, thank you very much for taking your time to speak to me today. I really appreciate that. And this I am doing as a part of the initiative that I have told you, the Forgotten Warriors. So whatever income we'll have from this channel down the line, we'll share that with the families of the martyrs or the family of the defense personnel who are in need. And whatever donation, if in time we'll get, we'll share them with we'll share it with the people who are in need, and we'll be very transparent in doing so. We'll share everything with whomever we are speaking, so that we are sure that we are doing our best for the people, means for the people who have served us, who have saved us from the other countries. So I'll start with a very quick introduction of yourself for the people who will be watching this down the line. And means there's so much to talk of, means to tell people about you, what you have done, but I'll be very precise because we are running short on time. So Group Captain MJ Augustine Vinod sir, Visit Silver Medal, was commissioned into fighter team in June 1992, and he retired in 2019. He has flown Mirage 2000, MiG 21, Kiran SPT 32, and Airbus 320 aircraft. He has over 3,500 hours of flying experience. Uh, he has he has also commanded a frontline unit of MiG-21 during his time. He's a hardcore techie. He also worked in the field of unmanned aerial vehicles, and he has flown different kind of quadcopters, fixed wing UAVs during his tenure from 2019 after he retired. So, sir, with this, again, I have prepared few questions for you, and means because we have to see the time also. So I'll ask those questions plus, but please feel free to add anything which you feel like will be interesting for the youngsters who might join the defense forces down the line and who are very curious about aircraft, because fighter plane is something that literally give us the goosebumps. Means we have lived in the defense areas, and whenever we listen to those noises when the aircraft flew, still I'm in right now Bangalore, and whenever I hear the noise of any fighter aircraft, I did literally run to the roof to see where it's going. So that still is in with us. So, sir, I'll start from the very starting. Means, what was your inspiration to join Indian Defense Forces and then opting for Indian Air Force? No, since a child, I mean, that I can remember, maybe I hadn't even started speaking, maybe. Okay. But तब से ही एक क्या कहें अभी, एक अंदर में से कुछ मतलब कि पिछले जन्म का इंस्पिरेशन रहा होगा, पता नहीं मुझे, राइट सर, बट तब से ही पायलट ही बनूंगा, ये तो तय था। और तब से मुझे पता था कि मैं पायलट ही बनूंगा, और भगवान ने उस तरह से मुझे लगा भी दिया, और बहुत जल्दी उस सपने को साकार किया So, मुझे। sir, you were the 19 first. साल का। Okay, you were the first in your family to join defense, या फिर आपके पेरेंट्स या और भी लोग थे? कोई नहीं, आई एम द फर्स्ट। इनफैक्ट फ्रॉम माय विलेज आई एम द फर्स्ट। Okay, okay. नॉट That's ओनली द फर्स्ट, द ओनली वन। मेरे बाद भी कोई नहीं ज्वाइन किया। right, sir. This is literally inspiring. Means the same thing is with us. So my background is from Air Force School. हमारा स्कूल एयरफोर्स एरिया के अंदर में ही था, कानपुर में। तो बचपन से हमने वही आवाजें सुनी है, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक नॉट एवरीबडी इज मेड टू गो इन डिफेंस, सो वी आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट विद व्हाटएवर वी कैन डू। सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द एसएसबी व्हाट वाज द रेशियो फ्रॉम डे 1 टू डे 4 टू कॉन्फ्रेंस? मतलब बहुत लोग आते हैं देने के लिए, बहुत लोग क्वालिफाई भी करते हैं, बट देयर आर वेरी फ्यू हु इवन who passed that 5 days long interview. तो आपके टाइम में रेशियो क्या था? तो वही, अभी कुछ खास बदला नहीं है। हमारे यहाँ पहले जाते ही एक आईक्यू होता था, राइट। उसी में काफी लोग आउट हो जाते थे। 450
मेरे बैच में 450 लोग थे। हम्म। उसमें आईक्यू टेस्ट में काफी आउट हो गए। उसके बाद पीएबीटी होता है, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। राइट। तो पीएबीटी में आई थिंक 50 के लगभग बच गए थे। हम्म। और एसएसबी के बाद 13 कुछ बच गए थे। मेडिकल के बाद आई थिंक 6 या 7 रह गए थे। ओके। ओके। सो अभी भी यही है मेरे ख्याल से। सिंस लास्ट हाँ, 8 ईयर हमारा पे रेशियो लगभग इसी तरह से था। सर मेरा ऐसे ही नेक्स्ट है। क्वेश्चन इनफैक्ट इसी बारे में था। पीएबीटी हमने बहुत सुना था अपने टाइम पे कि पीएबीटी इस वन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, एक ही बार देना होता है। थोड़ा उसके बारे में बताएंगे प्लीज। Correct. इज इट लाइक अ वीडियो गेम या फिर कुछ अलग होता है? नहीं, अभी सुना पीएबीटी बदल गया है। हमारे टाइम में ओके। मैकेनिकल था। ओके। पीएबीटी में बेसिकली व्हाट दे आर लुकिंग एट इज कि आपका हैंड आई और ब्रेन कोऑर्डिनेशन, ये तीनों चीज का कैसा है तालमेल, ओके। वो देखना चाहते हैं वो। ओके। तालमेल सही है, मतलब हम्म। इन द राइट डायरेक्शन, हम्म। और तालमेल सटीक है, वेदर ओके। इट इज एक्यूरेट। ओके। सो ये दोनों चीजें। बट आजकल के बच्चों को खास प्रॉब्लम मैंने सुना अभी हम्म। नहीं आता है। और जब हमारे टाइम के लोगों में पीएबीटी में बहुत लोग आउट हो जाते थे। आजकल ओके। सुना कि पीएबीटी में काफी लोग पास हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे बचपन से ही वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो आज का जनरेशन है, उसका हमारे जनरेशन से अच्छा है। और ओके। मैं हमेशा ये विश्वास किया हूँ, हर नया पीढ़ी जो है पिछले पीढ़ी का अगला वर्जन है। ओके। विंडोज 98 का 2000 आया या ऐसे तरह तो इसी को तो एवोल्यूशन कहते हैं, इसी को तो तरक्की कहते हैं। तो अगला जो ये वाला जनरेशन है आपका या आपके बाद वाला जनरेशन, हम्म। हमसे हर चीज में हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो, इंटेलिजेंस हो, हर चीज में हल्का सा आगे होंगे ही। तभी ओके। जाकर के आज से 1 मिलियन 2 मिलियन ईयर साल के बाद इंसान इतना विकसित हो हो जाएगा पाएगा। हर हर मामले में। राइट। तो वो मैं एवोल्यूशन थियरी पे भी और एक्सपोजर पे भी, और हम्म। जितना एक्सपोजर इस पीढ़ी को मिला है, मतलब हमारे पीढ़ी हम्म। से लेकर के जो अभी के जो पीढ़ी है, या हम्म। हमारे से 2 पीढ़ी पहले से लेकर के अभी के जो पीढ़ी है, जितना इंसान को इस काल में जितना एक्सपोजर मिला है, उतना हम्म। कभी इंसानी इतिहास में नहीं मिला है। ओके। तो इंफॉर्मेशन हो फिर, या हम्म। लैंग्वेज हो, या फिर दुनिया देखने घूमने की वर्चुअली सही हम्म। वो हो, भूगोल का ज्ञान हो, तो हमारे साइंस पास मैथमेटिक्स का ऑप्शंस बहुत ज्ञान हो। ज्यादा हैं बेसिकली, या द कर्व इज लाइक वेरी ऑप्शंस भी स्टीप। ज्यादा हैं और स्मार्ट भी हैं बच्चे। सर मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे एनडीए के थे और आपके टेंडुलकर एकेडमी के थे, बट आई विल जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विल कम डायरेक्टली टू द मिग 21 बिकॉज आपने वो फ्लाई करा हुआ है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता होगा। तो व्हाट सेट्स मिग 21 अपार्ट फ्रॉम द अदर अदर फाइटर प्लेन्स व्हिच आर अवेलेबल? और जिस टाइम पे वो चालू हुआ था 1960s में, जब इंट्रोड्यूस हुआ था, उस टाइम के कंपैरिजन में व्हाट सेट इट अपार्ट? मतलब बहुत लोग जानते होंगे, बट एज अ फाइटर पायलट आपका क्या व्यू है वहां पर? MiG-21 एक एक्सीडेंटल डिजाइन है। ओके। तो डेल्टा विंग जो है ना, वो एक एक्सीडेंटल डिजाइन है। आई मीन इसी इतिहास तो बहुत लंबा है, और एक शो शायद कम पड़ जाएगा। लेकिन इसका जब शुरू शुरू में बनाया गया था, U2 करके एक स्पाई प्लेन हुआ करता था ओके। अमेरिकन। वो बहुत ऊंचाई पे उड़ता था, 60,000 70,000 फीट पे। और वहां तक कोई मिसाइल ना फाइटर कोई रशियन का पहुंचता नहीं था। वो लोग बिल्कुल धड़ल्ले से रशिया के ऊपर से उड़ के वो फोटो वोटो उतार के लाते थे। राइट। तो उस उसको काउंटर करने के लिए MiG-21 बना। ओके। और उसका बनाने का एक ही पर्पस था, हाई ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्टर। ओके। बट जब उसकी खूबियां लोगों को नजर आई, तो उन्होंने उसको एक ग्राउंड अटैक हर फन मौला टाइप बना दिया। तो राइट। भारत में भी टाइप 96 हुआ करते थे, आजकल नहीं है। वो एक ग्राउंड अटैक फाइटर था। ओके। बॉम्बिंग के लिए वो, बॉम्बिंग और फोटोग्राफी के लिए उसको ये ग्राउंड उस, सपोर्ट के लिए। उसकी उ, उसको उसका महारत हासिल था। ओके। MiG-21 टाइप 75, और उसके बाद में बिस जिसको कहते हैं, उसके बाद में हम्म। बाइसन।
वो राइट। दोनों काम कर लेते थे, एयर टू एयर भी, एयर टू ग्राउंड भी। ओके। और टाइप 77 सबसे पुराना था। टाइप 74 भी था, लेकिन वो चला गया वो लौट करके। 77 सबसे पुराना था, उसको बाद में शुरू में हमने 71 की लड़ाई में उसको इस्तेमाल किया, उसके बाद उसको ट्रेनिंग के इस पे हमने इस्तेमाल किया। ओके। बहुत ही एक कारगर, बहुत ही एक सक्सेसफुल फाइटर रहा है पूरे विश्व में, I mean, भारत में ही नहीं। I'm literally getting goosebumps right now. My hair are literally raising up. जो भी whatever is the reason, even to talk to you या फिर listen about this thing. सर बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन जो आजकल सभी लोग सुन रहे हैं, ग्राउंड भी कर दिया गया है 21 को पूरी तरीके से। एंड प्लीज पार्डन मी अगर ये गलत क्वेश्चन हो, मतलब कि मोस्ट पीपल नो, जो सिविलियंस हैं वो जानते हैं कि मिग 21 एज अ विडो मेकर या फ्लाइंग कॉफिन के रूप में। एंड दिस कैन बी वेरी, मतलब बहुत ही अलग क्वेश्चन हो सकता है, तो थोड़ा सा मतलब बाकी लोग के लिए, आई अंडरस्टैंड बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट कि क्या होता है, चीजें कितनी चीजें मैटर करती हैं, बट थोड़ा आप अगर बताएंगे या शेयर करेंगे अपने व्यूज इसके बारे में, बिकॉज आपने फ्लाई करा हुआ है। देखिए, मिग 21 का डिजाइन आप देखेंगे तो एक तीर का जो आगे का जो नोकीला पोर्शन है उसके तरह है। उसका स्वीप बैक एंगल 57 डिग्री है, तो बिल्कुल ही एक डार्ट की तरह, या तीर का जो टिप है, एरो हेड, उस तरह का उसका डिजाइन है। तो वो चलता है इंजन के बलबूते पे, और इंजन जब बंद हो जाता है तो उसकी ग्लाइड रेशियो जिसको कहते हैं, वो इतना खास नहीं है। अगर 1000 फीट आप ग्लाइड करके आएंगे तो आप सिर्फ 5000 फीट आगे जा पाएंगे। तो ओके। एक मानिए उस उसका जो रेट ऑफ डिसेंट है जब इंजन बंद हो जाता है, बहुत ही ज्यादा होता है। वो डिजाइन के हिसाब से है। अब हमने भी कार चलाया है, प्रीमियर पद्मिनी चलाया है, मारुति चलाया है, और आजकल का नया गाड़ी भी कभी भी इंजन बंद हो सकता है, और सिंगल राइट। इंजन फाइटर है। इंजन बंद होने के बाद इंजन को चालू करने की एक प्रक्रिया है। उसको पहले उसको जो अभी हो सकता है इंजन फ्लडिंग हुआ हो या फिर कोई कारण हो, तो उसका एक प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करते हैं, ताकि पहले इंजन को पूरा क्लियर करते हैं, फिर उसको अलग से ऑक्सीजन देते हैं। एक इंजन को स्टार्ट करने के लिए अलग ऑक्सीजन बॉटल है, उसको ऑक्सीजन देते हैं, फिर फ्यूल देते हैं, उससे फिर उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका एक सीमित टाइम है, 50 सेकंड के लगभग लगता है इंजन को स्टार्ट होने में। राइट सर। तो उतने समय में तो हवाई जहाज तो वहीं रुका नहीं रहेगा हेलीकॉप्टर की तरह, वो तो गिरता रहेगा, राइट। है ना। तो उसके लिए एक पर्याप्त ऑल्टीट्यूड चाहिए जमीन के ऊपर, लगभग 4000 फीट तो मिनिमम चाहिए। 4000 फीट के नीचे अगर आपका इंजन बंद हो जाता है तो आपको हवाई जहाज को स्टार्ट करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्टार्ट होने से पहले आप जमीन सतह पर पहुंच जाएंगे। तो 4000 फीट के नीचे अगर इंजन बंद हो जाता है तो हमको इजेक्ट करना पड़ता है। राइट। और इजेक्शन सीट भी वो थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी है, उसको पर्याप्त फॉरवर्ड स्पीड ना हो तो उसका पैराशूट खुलेगा ही नहीं। तो खुलने के लिए ओके। तो हवा का फोर्स तो चाहिए ही। तो अब और कोई भी एक्सीडेंट आप उठा के देखेंगे, और लो लेवल हम लोग बहुत काम करते हैं, 50 फीट 100 फीट में भी उड़ते हैं, लेकिन बहुत हाई स्पीड उड़ते हैं। तो हम हमारी इंजन जब राइट बंद हो सर। जाती है अगर लो लेवल पे, तो हम उस स्पीड को कन्वर्ट करते हैं हाइट हाइट पे। तो अब पुल अप करते हैं हमेशा, ताकि राइट। स्पीड कम करें और हाइट गेन करें, और उसी दौरान हम इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, और नहीं हुआ तो फिर रिजेक्ट कर जाते हैं। ओके। लेकिन ऐसे सिचुएशन है जहां पे इजेक्शन का समय कम रहा हो, या फिर इजेक्ट करने का मौका ही ना मिला हो, या फिर इजेक्ट करते समय उनको लगा हो कि वो आबादी इलाके में है और तो थोड़ा डिले किया हो। तो इन सब मामलों में अब आप देखते हैं तो ये जो फेटल क्रैशेस हुए हैं, लेकिन फेटल क्रैशेस को भी हम रेट के हिसाब से देखते हैं। रेट क्या होता है, 10,000 घंटे में कितना क्रैश हुआ है। कितना क्रैश। ओके। मिग 21 10,000 घंटे अगर सब सारे मिग 21 मिल करके 10,000 घंटे उड़े, तो क्रैश का परसेंटेज रेशियो कितना रहा है। यस। कितना आ रहा है। सो ये देखिए, हर चीज मैं तो, जैसे आपने बताया, टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों पे विश्वास करता हूँ, तो मैं मैथमेटिक्स या
हियर से और ये सुनी हुई बातों पे नहीं, नंबर्स पे विश्वास करने वाला डाटा पे। इंसान है, और नंबर यस, डाटा डेटा पे। पे विश्वास करने वाला है। सुना आज से नहीं, बचपन से ऐसे ही रहा। हम्म। तो आप डेटा उठा करके देखेंगे कितने घंटे इतने सारे मिग 21 ने फ्लाइंग किया है, और हम्म। उसमें से क्या रेट, उसका एक्सीडेंट रेट रहा है, वो हम्म। दुनिया के अमेरिकन फाइटर्स उठा के देख लीजिए, उसके जो कंपैरिजन के जो फाइटर्स हैं, उस दौरान के जो फाइटर्स हैं, F4 फैंटम हो या F104 स्टार फाइटर हो, या फिर टोर्नेडो हो जिसका 2 इंजन है, हम्म। या ऐसे कोई जहाजों को उठा कर देखते हैं, तो मिग 21 का एक्सीडेंट रेट सबसे कम पाया जाता है। तो ओके। तो ये कहना कि मिग 21 विडो मेकर है या फिर फ्लाइंग कॉफिन है, ये मैथमेटिकली गलत है। कहने ओके। के लिए आप विपक्ष में बैठ करके कुछ भी कह सकते हैं, हम्म। लेकिन मैथमेटिकली ये गलत है। द परसेंटेज ऑफ फेलियर रेट इज बहुत ही लो है एज कंपेयर टू एनी अदर प्लेन। इट इज देयर। सर। अपने समय में आप तेजस को देख लीजिए, 8वां साल है, आज तक एक क्रैश नहीं हुआ। राइट। टचवुड, राइट, आज टच तक वुड एक सर। क्रैश नहीं हुआ। टच वुड नहीं होना चाहिए, मतलब क्यों? कि आई एम क्योंकि टेक्नोलॉजी। रिलायबिलिटी उसकी अच्छी है। उसकी इंजन 10, 15, 20 सेकंड में स्टार्ट हो जाता है, 50 सेकंड नहीं लगता है। राइट। तो समय से, जैसे मैंने बताया शुरू में, हम पुराने वर्जन हैं, नए बच्चे हमसे अच्छे हैं, उसी तरह पुराना जहाज और नए जहाज में कुछ तो अंतर होगा राइट। टेक्नोलॉजिकली और बाकी चीजों में भी। राइट। सर, टाइम आई हम्म। थिंक कम है, तो मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैंने दोस्त ने पूछा। एक्सप्लॉइट मिग 21 का एक ऐसा एक्सप्लॉइट जो अभी कभी आपने इम्प्लीमेंट करा हो, जैसे हमने टॉप गन में देखा है, F14 टॉम हैक वो रिवर्स करके एक मिग के ऊपर जाता है। इस तरह कभी कोई एक्सप्लॉइट आपने इम्प्लीमेंट करा है अपने टाइम में? बिकॉज आप भी यंग होंगे, उस टाइम अलग ही होता होगा। नहीं, मेरे एक आर्टिकल है, पढ़िएगा, हर्षकिट अच्छा। के मिग 21 फ्लाइंग एंड फाइटिंग इन मिग 21 करके एक आर्टिकल है, देखिएगा। ओके। इंटरव्यू है मेरा। हम्म। मिग 21 एक एब्सोल्युटली मैनुअल फाइटर है। तो हम अपना यूरो फाइटर टाइफून के साथ मिग 21 का हम्म। हम्म। एक वो था, 1 वर्सेस 1 कॉम्बैट, मॉक ओके। कॉम्बैट। हम्म। और ये तो तय था कि यूरो फाइटर टाइफून ही जीतेगा, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके। क्यों? क्योंकि मिग 21 मैनुअल फाइटर होने की वजह से, और उसको अच्छे से पायलटिंग करेंगे आप, उसका स्पीड, जितना वो स्पीडोमीटर है, उसका स्पीडोमीटर शुरू ही होता है 200 से। ओके। राइट। हम्म। 200 kmph से उसका स्पीडोमीटर शुरू है। जैसे अपने स्पीडोमीटर में जीरो है, मिग 21 के स्पीडोमीटर में जीरो है ही नहीं। ओके। उसकी शुरुआत 200 से है, और 3000 किलोमीटर तक वो बनी हुई है उसकी डायल। ओके। और मेरा मेरा स्पीड 200 से कितना कम था मुझे मालूम नहीं, और मैंने इतना हम्म। कम कर पाया कि वो मेरे से आगे निकल गया, ओके। और मेरे गन साइड पे आ गया। हर बार वो मेरे से आगे भाग जाए और मेरे गन हम्म। साइड पे ही आ जाए। तो इस तरह की जो ओके। मैनुअल फाइटर को आप अगर किसी अच्छे पायलट को देंगे, अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम्म। मैं अच्छा पायलट हूँ, बट हम्म। मैं किसी अच्छे पायलट को देते हैं, तो उसको उसके पूरी रेंज को इस्तेमाल करने का क्षमता रखता है, तो वो कॉम्बैट में बहुत काम आता है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द पायलट एट द एंड डॉग फाइट में एंड या द फिर। कैपेबिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट। मिग हम्म। 21 लो स्पीड बहुत अच्छा कैपेबिलिटी जहाज है, तो अगर आपको उड़ाना आता है। ओके, तो सर आजकल के डॉक्ट्राइन में जहां पर टेक्नोलॉजी का बहुत ही इन्फ्लुएंस है आपका वॉरफेयर में, तो मतलब क्या प्रेफर करा जाएगा? डॉग फाइट तो आई थिंक होगी नहीं है इस टाइम पे, या बहुत ही मुश्किल है होना। जैसे बहुत यूक्रेन में हम मुश्किल है। देख रहे हैं या रशिया में देख रहे हैं, वहां पर आई थिंक कुछ हुई है। बट अगर सी फुल स्केल फाइनली, वॉर। आप देखिए, हर तरह का वेपन आप ले जाते हैं, हम्म। ठीक है। एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल ले जाता है, मैंने आपको बताया, मैं हम्म। मैथमेटिकल इंसान। बियॉन्ड यस। विजुअल रेंज मिसाइल ले जाते हैं 4। हम्म। ओके, बियॉन्ड विजुअल रेंज आपने 4 जहाज इधर, 4 जहाज उधर, आपने एक दूसरे पे मारा, और आपका बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल खत्म हो गया सपोज। अभी राइट। आपके पास विद इन विजुअल रेंज 3 किलोमीटर वाले मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज 50-60 किलोमीटर वाले मिसाइल खत्म हो गया, राइट आपने सर। फायर कर दिया। राइट। अभी आपके पास 2 सेल्फ डिफेंस विद इन विजुअल रेंज मिसाइल बचे हैं।
ठीक है, आप दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ी है और वो दोनों भी आपने फायर कर दिया, हो सकता है आपने किसी को मार भी गिराया हो, लेकिन अभी भी एक आध जो एनिमी है जो उस फाइट में आपके साथ इन्वॉल्व था, वो एक आध वो भी बचा हुआ है, एक आध आप भी बचे हुए हैं। राइट सर। अब लड़ाई गन टू गन हो जाती है, क्योंकि ओके। ना उसके पास पर्याप्त मिसाइल है उस कैपेबिलिटी के, आपके पास पर्याप्त मिसाइल है उस कैपेबिलिटी के, तो अभी स्किल वर्सेस स्किल का जो मामला है वो शुरू हो जाता है। ओके। तो अभिनंदन के केस में आपने देखा होगा ऐसे ही कुछ हुआ राइट, मतलब उसमें है तो ना। मैंने पर्सनली बहुत रिसर्च करी है। नोबडी वुड हैव द परफेक्ट हम्म, आंसर, बट बीइंग अ इंडियन, मतलब मैंने बहुत रिसर्च करी है, बहुत वीडियोस देखे हैं कि असल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। एंड अगेन आई डोंट नो हाउ टू थैंक इंडियन एयरफोर्स ऑन दैट। सर एक लास्ट क्वेश्चन, यंगस्टर्स के लिए कोई ऐसी मूवी जो आप प्रेफर करते हो, नॉट द न्यू वन, इंडिया में तो नहीं बनी है अभी तक, एक नई मूवी अभी आ रही है फाइटर करके, ऋतिक रोशन की, विजेता। विजेता। ओके। विजेता श्योरली नंबर वन। हम्म। और मेरी माँ, मेरे पैदा होने से पहले मेरी माँ ने वो ओके। वाली देखी थी, कौन सी है वो, बागों में बहार है, कौन सा था? अच्छा सर, नहीं मालूम, मुझे लिटरली नहीं मालूम, मैं 1989 के पैदाइश हूँ। राजेश खन्ना की एक पिक्चर है, ओके। वो देखी थी मेरी माँ ने हम्म। और बहुत प्रेरित हुई। हम्म। और उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे को मैं पायलट बनाऊंगी। हम्म। वो बहुत ही, मैं तो कहूँगा बहुत इंस्पायरिंग अच्छा मूवी है। बनाया किताब। अच्छा। ओके। इंस्पायरिंग तो नहीं कह सकते, इट्स अ लव स्टोरी हम्म। एक्चुअली। हम्म। इंस्पायरिंग तो कहना मुश्किल है, हम्म। लेकिन वो आपको देखना है अगर उस जमाने में हम्म। कैसे इंडियन एयरफोर्स हुआ करता था। ओके। तो जोंगा वगैरह है, हम्म। उसके जो कैनबरा को दिखाया है, आराधना ओके। है पिक्चर का नाम। ओके, आराधना। ओके। ओके। हाँ, ये सर दोनों तो जरूर देखना चाहिए। मतलब कि आई हैव टू डॉटर्स, लिटिल डॉटर्स, एंड मैं उन पे अपना थोपना नहीं चाहता, बट आई विल ऑलवेज लाइक टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स या फिर डिफेंस कहीं पर भी। तो बिल्कुल एंड थोपिएगा नहीं, क्योंकि मैं इस चीज पे विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं, मेरा झुकाव थोड़ा सनातन धर्म की तरफ है, तो मैं इस चीज पे विश्वास करता हूँ कि आपका जो, आपका, आप इस दुनिया में क्या करने आए हैं, वो लगभग तय है। बट सर हमारे डीएनए में और डिफेंस डिफेंस रहा है, वो मतलब है, कि वो है, वही तो मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा कायनात ऐसे चीजों को बनाया हुआ है उन बच्चियों के लिए कि हो सकता है आपके जरिए वो बन जाएं, राइट हो सर। सकता है। सर लेकिन थैंक यू। आप, यू बी द प्रोवाइडर यस। एंड लेट देम चार्ट देयर पाथ। राइट राइट, एंड सर थैंक यू वेरी मच। आई नो आप बहुत ही शॉर्ट टाइम पे आए थे, एंड बहुत ही, हमने अभी आई थिंक 4-5 दिन पहले बात करी थी, आप एग्री हुए। आई रियली रियली अप्रिशिएट योर टाइम, एंड फ्रॉम द हार्ट, दिस इज लिटरली फ्रॉम द हार्ट, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सर्विस दैट यू हैव गिवन टू दिस कंट्री। एंड प्लीज पार्डन मी अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन में गलती हुई हो, मेरा ये पहला पार्ट था। आई वाज रियली वेरी वेरी नर्वस, बट हाउ वी हैव टेकन दिस, I'm really sometime a bit proud of me कि ठीक है, I have talked to somebody like you. It was my first interview. Thanks a lot for your time, and I'll keep you updated जो भी आप बताएं। Thank you sir, thank you very much. Have a good day sir. Thank you sir.